ویلکم ہے آپ سب کا مس نیوز چینل پہ۔ بڑھتے ہیں دنیا کی خبروں کی طرف۔ لنگر ہاؤس کے مکینوں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی جو موسیٰ ندی کے ترقیاتی کاموں سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ لوگوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور کانگریس پارٹی کے خلاف نعرے لگائے۔ رہائشی کانگریس حکومت کے منہدم کرنے کے منصوبے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ موسیٰ دریائے بیڈ اور بفر زون میں تقریباً 12,000 مکانات۔ حکومت بے گھر ہونے والوں کو کسی اور مقام پر 2 بیڈ روم والے مکانات فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ جمعے کو محکمہ ریونیو کی ٹیموں نے اس مکانات کی نشاندہی کی جو گرائے جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پیٹلا برش پولیس MTS آفس کے پاس ہائیڈرا سے پریشان عوام نے CM ریونت ریڈی کا پتلا نذر آتش کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کانپور جیسے ہی ہندوستان اور بنگلہ دیش میدان میں لڑ رہے ہیں۔ شائقین کے درمیان تناؤ بڑھنا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات اسٹینڈرز میں جھڑپیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعے میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سپر فین ٹائیگر رابی پر 27 ستمبر بروز جمعہ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران اتر پردیش کے شہر کانپور کے گرین پارک اسٹیڈیم میں مبینہ طور پر ہندوستانی کرکٹ شائقین نے حملہ کر دیا۔ اسٹیڈیم کے C اسٹال میں کشیدگی بڑھ گئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مداخلت کر کے شائقین کی پٹائی کا شکار ہونے والے رابی کو بچا لیا۔ ٹائیگر کے چہرے کے پینٹ اور لباس کے لیے مشہور اس مداح نے پولیس کو بتایا کہ اس کے پیٹ اور کمر کے نچلے حصے پر چوٹ لگی تھی جس سے وہ سانس لینے سے قاصر تھا۔ اس اسٹیڈیم حکام نے طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا تھا۔ آن لائن منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں رابی کو بے حد درد اور بولنے سے قاصر دیکھا گیا۔ اس کو کھولا بناؤ یار، پیچھے کرو بھائی، کیا بول رہا ہے؟ چلیے پیچھے ہٹیے۔ نام بتایا کیا؟ سی اسٹال میں ہمارا ایک سیکنڈ تھوڑا سا بھیا، تھوڑا سا پیچھے کما دیا گیا ہوگا۔ یہ اوڑ پویلین میں چاہیے، اوڑ میں دینا سامنے والے میں۔
हाइड्रा के खिलाफ लेट नाइट प्रोटेस्ट किए गए हैं महमूद नगर किशनबाग हैदराबाद में। आइए देखते हैं ये प्रोटेस्ट। देखिए साहब, हमारी जो गुजारिश है, चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, इस आवाम को जो ना बेघर होने से बचाइए। आप गवर्नमेंट आती और जाती रहती है, इस प्रोजेक्ट नहीं चाहिए हमें रोजगार चाहिए और हमारे घरों से बेदखल कर रहे हैं। और ये जो है ना नदी जो है बनी हुई, इससे किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं है और हमारे कभी भी फ्लो नहीं आया यहाँ पे घरों को। कितना भी 20 साल से हम मौजूद यहाँ पे है, इसमें कभी भी फ्लो नहीं आया। जैसे कि आप वक्फ बोर्ड की लैंड के ऊपर जैसे कि जजमेंट दिए हैं, 12 साल तक अगर कोई कब्जे में है तो वक्फ बोर्ड लैंड नहीं पूछ सकता। तो वैसे ही हम जो है प्राइवेट लैंड है, बल्कि ये प्राइवेट लैंड है, इस लैंड पे हम काबिज है, इलेक्ट्रिसिटी बन रहे हैं, सेवरेज बन रहे हैं, टैक्स बन रहे हैं और रिगिनी को जो है ना सेल्टेड कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी बने हैं, गवर्नमेंट का हम फायदा करें। फिर भी हमें जो है ना घर से बेदखल करा जा रहा है और 12 लाख का जो है ना डुप्लेक्स मकान, वो 2 बेडरूम का मकान देते बोल रहे हैं। हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ है, हमारे रिश्तेदार, हमारे तमाम अहलो-याल यहीं पे है और हमें यहीं रहना है और हमको यहाँ से बेदखल मत करिए प्लीज। आप लोग, आपसे चीफ जस्टिस साहब से आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर जज साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, हाई कोर्ट के जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, हमारे से इस आवाम से हजारों लोगों की दुआ लगेंगी आपको। इंशाल्लाह इसको बेदखल मत करिए। हमें कोई कैश नहीं चाहिए, ना कोई जमीन चाहिए, ना कोई फ्लैट चाहिए, हमें सिर्फ हमारे घर से हमें बेदखल मत करिए। हमको प्रोजेक्ट भी नहीं चाहिए, पहले रोजगार को फुलफिल करिए। आप तेलंगाना में कितने बेरोजगार है, उन रोजगार को लाइए आप, हमें वो। अंबानी ने नीता अंबानी की जानिब से तेलंगाना CMRF को 20 करोड़ का अतिया दिया। रिलायंस फाउंडेशन के ओहदेदारों ने CM रेवंत रेड्डी को चेक सौंपा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED आज रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेती श्रीनिवासा रेड्डी के दफातर और रिहायश गाहों की तलाशी ले रहा है। आइए देखते हैं। హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటి పొంగులేటి నివాసాలు తన కార్యాలయం ఎన్నికల సమయంలో పొంగులేటి నివాసాలపై ఈడీ అధికారులు సోదాలు చేసిన మీరు కూడా మనం చూసాం. ఏకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అది కూడా ఒక మంత్రి అన్న ఆర్బీఎల్ కూడా అవుతుందా అన్న? ఆర్బీఎల్లో నడుస్తుందా? ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అది కూడా నడుస్తున్నాయి అంట. ఆర్బీఎల్ సోమాది కూడా మరోవైపు ఇటీవల కాలంలో ఎన్నికల గతంలో ఎన్నికల సమయంలో పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు కూడగొట్టారు, డబ్బులు లావాదేవీలు. వీడు చెప్పిండు అంటే వాళ్ళు కనుకోరు వీడు కొనుగోలు చేసింది ఎట్లా కొనుగోలు చేసింది ఎంత అమౌంట్ అంటే డిపాజిట్ ద్వారా కొనుగోలు దానికి అన్అకౌంట్ అంటే డిపాజిట్ అమౌంట్ తెలియదు కదా. సో నువ్వు అట్లా కొనుగోలు చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. కొనుగోలు చేసినారనేది చూపించాలి, వీడు చూపించలేదు. ఏంటంటే
కింద పెడతా పోలీసులు కూడా వస్తారు కదా కింద ఇవ్వడానికి కింద పాస్పోర్ట్ ఒకసారి పాస్పోర్ట్ పైన ఇది కొట్టుకున్నా కొట్టు जिले मेदक के नारसपुर में कल BVRIT इंजीनियरिंग कॉलेज की 2 बसों के दरमियान तसादुम में एक ड्राइवर की मौत हो गई और दूसरा ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। GHMC ने माधापुर में श्री चैतन्य कॉलेज को 2 लाख रुपये का चालान जारी किया क्योंकि बावर्ची खाने में सफाई की खराब सूरत हाल थी। MIM के MLA ने चादरघाट में मूसी रिवर से जुड़े लोगों से मुलाकात की। पचास जनों को फोन आया जिसमें से 18 जने राजी हो गए। मैं बोल रहा हूँ पहले लिस्ट ले लेंगे, इसके बाद यागुड़े में भी खड़ा एक लेके लिस्ट ले लेके उसके बाद बैठ के पहले ये नंबर तो मालूम होना, ये खड़ा 121 है, फैमिलीज कितने हैं नहीं मालूम। वो आ जाए तो सीधा सीधा पिक्चर सामने। एक बिल्डिंग है उसके अंदर 4 जने रह रहे, तो एक बिल्डिंग को 4 जने रहने वाले, 4 फैमिलियां रहने वाले, एक घर मिल गए तो कैसा मसला हो। ये मेरे कहने डेटा आ जान दो, अगर फोन आया तो बोलो हम पूरा डेटा एंट्री करें, मेरे साहब से बात करें। जुम्मे को जस्टिस कुनूर लक्ष्मण पर मुश्तमिल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कमिश्नर हाइड्रा मिनिस्टर AV रंगनाथ पर सख्त तनकीद की। अमीनपुर म्यूनिसिपैलिटी में एक दिन पहले नोटिस जारी करके रिहायशी कॉम्प्लेक्स को मस्मार करने के लिए रंगनाथ IPS मजीद बरा जस्टिस लक्ष्मण ने कमिश्नर और तहसीलदार अमीनपुर म्यूनिसिपैलिटी को हिदायत की कि वो 30 सितंबर 2024 पीर को अदालत में जिस्मानी तौर पर हाजिर हो। मजीद ये कि अगर जिस्मानी तौर पर हाजिर होना मुमकिन नहीं है तो कमिश्नर हाइड्रा और तहसीलदार अमीनपुर को अमली तौर पर पेश होना चाहिए और अदालत को वजाहत करनी चाहिए कि हाइड्रा किसी कानूनी बुनियाद पर तश्कील दिया गया है, इसके इख्तियारात फ़राइज़ हाइड्रा की हिमायत करने वाले कानून क्या है और अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी और दस्तखत की जायदाद को मस्मार करने की वजूहत क्या है। जज मोहम्मद रफ़ी एक डॉक्टर और एक दूसरे मधुरा नगर बीरमगुड़ा अमीनपुर म्यूनिसिपैलिटी के रिहायशियों की तरफ से डायरेक्ट पेशन और फैसले कर रहे थे। हाइड्रा की जानिब से प्लॉट नंबर 92 में तामीर करदा इनकी जायदाद को मुहद्दम करने की कार्रवाई से नाराज़ थे।
270 मुरब्बा गज सर्वर नंबर 165 और 166 में वाक़ श्री कृष्णा नगर कस्तागरेड्डी पेट ग्राम पंचायत अमीनपुर मंडल संगारेड्डी ज़िले में वाक़ है। अर्जी गुजार के दावा है कि इन्होंने मज़कूरा जायदाद ग्राम पंचायत से मतलूबा इजाज़तनामा हासिल करके 24 माह की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तामीर की है। इसके अलावा जब रेवेन्यू हिकाम ने नोटिस जारी किया तो नोटिस का जवाब दिया गया कि अदालत ने हाइड्रा के स्टैंडिंग काउंसिल और रेवेन्यू के सरकारी वकील की भी गलती पाई, जिन्होंने अदालत को मुत्तला किया कि हाइड्रा का रेवेन्यू हिकाम जायदाद पर के पुरअमन कब्जे में मुदाखलत नहीं करेगी। जब अदालत ने पूछा, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि जायदाद को मसमार कर दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसी रिवर के साथ वाक़े तारीख़ी इमारतों को मशहूर सियाहती मुकामात के तौर पर तैयार किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सनअतकारों से अपील की कि वो इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए, जो शहर हैदराबाद की सक़ाफ़त की अक्कासी करती है। सीएम ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना को फ़लाही रियासत बनाने के साथ सियाहत के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए परअज़म है। रियासती महकमे सियाहत ने हैदराबाद में कई कदीम स्टेपवेल्स की बहाली के लिए CII के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर बात करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने मूसी रिवर फ्रंट की तरक्याती प्रोजेक्ट को पुरजोश तरीके से शुरू किया है। वज़ीर आला ने शहर में मुतअद्दिद तारीख़ी इमारतों को नज़रअंदाज करने पर पिछली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, जो कि खस्ता हाली को पहुंच चुकी है। जल्द ही इमारतें मशहूर जुबली हॉल, जो कि कानून साज कौंसिल का ऐवान तारीख़ी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला ने मुशाहिदा किया कि इमारत को खुसूसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और इसे मुस्तक़बिल में महफूज करने की ज़रूरत है। सीएम रेवंत रेड्डी ने CII को तजवीज़ दी कि वह तारीख़ी जुबली हॉल को गोद ले और इसे महफूज करे। पुराने उस्मानिया हॉस्पिटल के तहफ़्फ़ुज़ को भी उठाया जा रहा है और गोशा महल स्टेडियम में जल्द ही एक नया उस्मानिया हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। ख़वातीन का रूप धारने वाले मर्द भिखारियों को दुकानदारों के गाड़ियों के मालिकीन और पैदल चलने वालों से रकम वसूल करने और खानकार सिकंदराबाद में माया बाज़ार होटल के करीब ट्रैफिक की आज़ादाना रवानी में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। HCL हैदराबाद में नया कैंपस शुरू करेगी, जो 5000 इंजीनियर्स को इजाफी तौर पर मुलाजिमतें फराहम करता है। जल्द ही हैदराबाद के हाईटेक सिटी में आ रहा है। HCL टेक के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ने जुम्मे को सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इन्हें नए कैंपस की इफ्तिताह के लिए मदऊ किया। तेलंगाना और हैदराबाद इंचार्ज वज़ीर बराए BC बहबूद और ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का कहना है कि सोशल मीडिया पर चंद लोग अवाम को वज़ीरों के ख़ानदान का अफराद के ख़िलाफ़ बोलने के लिए उकसा रहे हैं और इस तरह का मवाद पोस्ट कर रहे हैं। इन्होंने बराह रास्त इस बात पर जोर दिया कि इंतज़ामिया अवामी जज्बात की कदर करती है। इन्होंने कहा, अगर आप लोगों से मोहब्बत करते हैं तो आइए और अपने ख़यालात मुझसे शेयर करें। एक अहम ऐलान में प्रभाकर ने इंकशाफ किया कि हुकूमत गोदावरी के पानी को दरियाए मूसी तक पहुंचाने के मंसूबे पर गौर कर रही है, जिसका तखमीना बजट है 5500 करोड़। इस महत्वाकांक्षी इक़दाम का मकसद दरिया की हालत को बेहतर बनाने और खित्ते में पानी की किल्लत को दूर करना है। वज़ीर ने BJP और BRS पार्टियों के दरमियान ताउन पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि वो पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे हैं। मज़ीद बरा इन्होंने सोशल मीडिया पर ज़ाती हमलों के हवाले से सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि जो लोग इस तरह के रवैये में मुलविस है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे हुकूमत मूसा नदी के लिए अपनी मंसूबों को आगे बढ़ा रही है, आने वाले महीनों में मजीद अपडेट्स की तवक्को है। ప్రజలను తప్పుదో పట్టించేటువంటి అవాస్తవాలను చెప్పి సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్ ద్వారా దుష్ప్రచారాలను చేసి వ్యక్తిగతంగా తిట్టేటువంటి అంశాలను
ప్రభుత్వంలో ఒకవేళ మీకు నచ్చకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారిని విమర్శించదలుచుకున్నారు, మంత్రులను విమర్శించదలుచుకున్నారు, పార్లమెంట్ సభ్యులు విమర్శించదలుచుకున్నారు, లేదా చట్టం ఉంది, న్యాయం ఉంది, కోర్టు ఉంది, డెమోక్రసీ ఉంది, అన్నిటికంటే రేపు పొద్దున బ్యాలెట్ ఓటింగ్ ఉన్నది. అవి వదిలిపెట్టి కొంతమందిని రెచ్చగొట్టి కుటుంబ సభ్యులతో సహా సంబోధించేటువంటి వ్యాఖ్యలు, వాటిని మీరు తీవ్రంగా ప్రచారం చేసేటువంటి అంశం మీద నేను సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ గారిని కూడా ఆదేశిస్తా ఉన్నాం. అటువంటి వాళ్ళు ఎవరు చర్యలకు పాల్పడ్డా తగిన విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఇలా ఇది మంచి సంస్కృతి కాదు. గతంలో అనేక మంది మా వాళ్ళ మీద అటువంటి ఏదైనా ఒక పోస్ట్ క్రియేట్ అయితే ఇళ్లలో అర్ధరాత్రి చేసి అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చినారు. ఇలా ఇటువంటి ఆందోళనకరం కలిగించేటువంటి లాంగ్వేజెస్ ఉపయోగించి ऐसे ही दुनिया भर की खबरों से आगाह रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।